कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब। रहे सुरक्षित ये देश हमारा, मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी।
the smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस।
The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है, उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels
that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that, when scanned, gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry, moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day.
The president's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment.
The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP 2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे।
BMP 2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting dais, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat-o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers, led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य, तीव्र चौकस।
और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए मन। The MF-RDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR-SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrunjahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः।
अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं।
कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Dhruv. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, Rashtra Nirman pehle bhi, ab bhi, aage bhi aur hamesha. It showcases their continued commitment in a variety of ways
to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth, and sustained, consistent, and invaluable contributions. And now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune, Sound Barrier, Quick March. And that is the BARS formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day Parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful, and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Azma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base.
we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles, sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF women marching contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Sema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders,
playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal: service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kense, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। के हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम। सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर घर हर दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में। भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। The beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है।
मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यार। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था।
And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వ విద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ మాట పాటల అక్షర దోస్తి ఆ ఈ అంటూ పలక బలపం పట్టాము ఏబిసిడి అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము ట్యాబులను చేతిన బట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం విశ్వవిద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Kartila marshals, kartila shams, sharchuk yalmu, kartila shams, sharchuk yalmu, kartila shams, kartila chotma mapulva, lama idam chitila shams, khandru choskum kamtila shams. और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। கண்ட தமிழ் குடியே வாழிய வாழிய வாழியவே உலகோலை கண்ட தமிழ் குடியே வாழிய வாழிய வாழியவே और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे पई फुले जी भर रे राणा रोने अजूणी पई फुले जी भर रे राणा रोने अजूणी उतारा डिंधा योरना रे राणा उतारा डिंधा उतारा डिंधा योरना रे राणा उतारा डिंधा बिया मेरी जा बोल रे राणा रोने अजूणी राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो रे। From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas awash in delicate shades of pink. मेघालया आगली की जिस
Diverse themes intricately weave together in कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तो यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम
दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तो यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में करना जिसके हाथ में है, जीते भी मरते। Our tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला, 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 And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी। झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र, एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम
भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles. 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path.
Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
ଆପଣଙ୍କ ସଦୟ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା दर्शक बंधु आपण मैंने दिल्ली पुलिस सबुठी उत्सवर माहौल आप सीधा सड़क देखिपुं बर्तमान आपण राज्य में पुलिस मेडाल प्रदान तार सीधा प्रसारण देखिपुं आ गोटे पटे नुआ दिल्ली कर्तव्य पथर सीधा सड़क प्रसारण देखिपुं आज साधारणतंत्र दिवस अवसर में नुआ दिल्ली में स्वतंत्र कार्यक्रम बा कर्तव्य पथरे परेड अभिभाषण प्रदान करा परे वर्तमान विभिन्न देश एवं आंचलिक अंचलगुड़िकर सेमानकर लोककला प्रदर्शन करा जाउछि। वर्तमान 75तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में राज्य में स्वतंत्र भाव में जो पुलिस मेडाल प्रदान करा सम्मानित करा जो विशिष्ट व्यक्ति मानकु सेमानकु मध्य सम्मानित करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। वर्तमान सीधा सड़क प्रसारण ताहार आपण देखि पारुछंती। वर्तमान देश साधारणतंत्र दिवस पालन करुवा बेले आज सकाळु सकाळु निर्धारित समय जहाँ रही सकाळ निर्धारित समय से समय गांधी मार्ग में राज्यपाल रघुवर दास पहुंची परवर्ती समय सम्मानित अतिथि भाव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उपस्थित रही पताका उत्तोलन करा समस्ते अभिवादन प्रदान करते जो कंटिजेंट माने रही से निज निजर परेड सेठारे उपस्थापन करते परवर्ती समय डेयर डेविल शो करा स्केटिंग शो करा विभिन्न आंचलिक लोक नृत्य और लोककला को आधार करिकी विभिन्न प्रज्ञापन मेढ़ सेठी प्रदर्शन करा गोटे पटे आपण सीधा सड़क प्रसारण देखिपुं पुलिस पदक प्रदान करा जो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजे उपस्थित रही आ गोटे पटे नुआ दिल्ली सीधा सड़क कर्तव्य पथर आपण प्रसारण देखिपुं। एसओजी चंदका भुवनेश्वर वर्तमान पुलिस सेवा प्रदान मेडाल प्रदान करा जाउछि। राज्य सरकार को पक्षरु एही मेडाल प्रतिवर्ष प्रदान करा जाय थाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करुथबा निजर कर्मक्षेत्र में सबुठारु भल सेवा प्रदान करिथिबा कर्मचारी मानकु एही मेडाल प्रदान करा जाय थाए। राज्य सरकार को पक्षरु ए पुलिस मेडाल प्रदान करा जाय थाए प्रति वर्ष साधारणतंत्र दिवस बा स्वाधीनता दिवस अवसर रे एही मेडाल गुडी को प्रदान करा जाय थाए। चलित वर्ष मध्ये 2024 रे जेतेबेला 75तम साधारणतंत्र दिवस पालन करूछे पुलिस मेडाल प्रदान करा जाउछे। श्री सुनील कुमार बोरिया कमांडो एसओजी चंदका भुवनेश्वर वर्तमान सिपाही ओएसएपी 3rd बैटालियन कोरापुट। श्री सुजीत कुमार राणा कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स बरगढ़। विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय सेवा निमंते राष्ट्रपति पदक भारतर मान्यवर राष्ट्रपति स्वाधीनता दिवस अवसर में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माननकु तांकर विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय सेवा निमंते राष्ट्रपति पदक प्रदान करिथांती। 2023 मसीहा स्वाधीनता दिवस अवसर में दिया जाइथिबा 2 जन अधिकारी को विशिष्ट सेवा और 11 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माननकु उल्लेखनीय सेवा निमंते राष्ट्रपति पदक और राज्य सरकार प्रदत्त यथाक्रमे 15,000 टंका और 7,500 टंकार प्रोत्साहन पुरस्कार सह मानपत्र प्रदान करने निमंते मो मान्यवर राज्यपाल महोदय को निवेदन करुअछि। विशिष्ट सेवा निमंते राष्ट्रपति पदक श्री संजय कुमार। बर्तमान सीधा सड़क जा नुआ दिल्ली जो कर्तव्य पथरे स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। देशर विभिन्न प्रांतरू आसिथिबा कंटिजेंट माने सेमानकर देशर बा कला संस्कृति को सेठी उपस्थापन करुछन्ते।
वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next
contingent, Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivlila with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing our work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट
और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहां शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11 Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77 Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए,
एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है और इसके साथ दो सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied,
showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Changade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard arriving the presidential carriage moving forward to position.
75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations. Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the 3 chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard
now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister, making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here, a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के
लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफ़ी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर, ये ऐसे क्षण जिन्हें यहां मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties and power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहां दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाज़ा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहां मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts
And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्रपथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे कि नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में करना जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम,
रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ हर घर हर दर पे दिया तू जला दे चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई आएगा ये तो विश्वास था अब जो तू यहाँ लौटा है स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ हर घर हर दर पे दिया तू जला दे चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई आएगा ये तो विश्वास था अब जो तू यहाँ लौटा है स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में
शेष पड़ा 75तम साधारणतंत्र दिवस उत्सव मुखर दिल्ली ठू पल्ली कर्तव्य पथ में पताका उत्तोलन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्य अतिथि भाव में जोगदेले फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहु अतिथि और नेता मंत्री। विश्व देखिला कर्तव्य पथ में नारी शक्तिर झलक। प्रदर्शित है 3 बाहिनी महिला अफिसर वीरत्व। प्रज्ञापन मेढ़े विकसित भारत और भारत माता गणतंत्र को फोकस। परेड रे सामरिक शक्ति सह देखागला सांस्कृतिक विविधतार नियारा मिश्रण। साधारणतंत्र दिवस परेड रे मनमोहिला प्रज्ञापन मेढ़ 3 वर्ष प्रदर्शित है ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़। रघुराजपुर पट्टचित्र हस्तशिल्पी सह ग्रामांचल महिला मानक अर्थनैतिक उन्नति और महिला सशक्तिकरण बार्ता। भुवनेश्वर राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस पताका उत्तोलन कले राज्यपाल रघुवर दास। सम्मानित अतिथि भाव में जोगदेले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। गांधी मार्ग में परेड सह प्रदर्शित है प्रज्ञापन मेढ़। साधारणतंत्र दिवस पर सारा राज्य उत्सव मुखर। कटक रे पताका उत्तोलन कले राजस्व मंत्री सुधा मांडी। पुरी रे पताका उत्तोलन कले मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक। गणतंत्र दिवस को नहीं सबुटी उत्साह। झटकुची मां समलेश्वरी मंदिर काली लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। प्रस्तुति शेष पर्यायर अनुष्ठित है कलश यात्रा। अरवाड़ीपड़ारू आरंभ हो रिंग रोड दे समलेश्वरी मंदिर में पहुंचला यात्रा। सामिल हेले 1100 महिला। पुणी बिहार राजनीति हलचल। महागठबंधन छाड़ी एनडीए मुहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बासभवन में जेडीयूर वरिष्ठ नेता आलोचना। सेपटे बाचस्पति कथा हेले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। बीजेपी शिविर भी चलचंचल। संपूर्ण खबर को आसवा। झटकुची मां समलेई पीठ। मां समलेश्वरी मंदिर परिसर में भव्य रूपांतरण होइछि। भक्त एवं श्रद्धालु मानकर दिव्य अनुभव प्राप्ति विशेष भाव में गुरुत्व होई रूपांतरित होइछि। आसंता काली समलेई प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। एथिपाई सबु प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। एथिपाई बाहरी कलश यात्रा। कलश यात्रा मारवाड़ीपड़ारू बाहरी रिंग रोड दे समलेश्वरी मंदिर पर्यंत जीव। एथिरे 1100 महिला महानदी घाटरू पानी नहीं मां पाखक जाउछथि। समलेई प्रकल्प में मां पीठर विकास और उन्नतीकरण होइछि। 4 दिगरे 4 गोटी प्रवेश द्वार सह भक्त एवं श्रद्धालुंकर आध्यात्मिक अनुभव पई प्राय 1 किलोमीटर दैर्घ्यर परिक्रमा पथ निर्माण होइछि। प्राय 40 एकर जमीन होइथिबा एही प्रकल्प में महानदी आरती पई एक ब्रिज मध्य निर्माण होइछि। एथि सहित स्वतंत्र दीप घर भी होइछि। या सहित समलेश्वरी पोखरीर रूपरेख मध्य बदली जाइछि। पोखरी मध्य को एक सेतु निर्माण करा जाइथिबा बेले लोके जाई सेठारे मनलोभा दृश्यर मजा उठाइबे बोली व्यवस्था होइछि। जो चमत्कार दृश्य आप देखिपुं जितेबाला समलेई पीठर रूपांतरण होइछि। आसंता काली को अपेक्षा रही। आसंता काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जितेबाला लोकार्पण करेंगे और केमती झटकुची ये जो भिजुआल आप देखिपुं कलश शोभायात्रा। ये अत्यंत देखुंत जिते कलश शोभायात्रा बाहरी मां मंदिर अभिमुखे एवं 1100 महिला सामिल होती शोभायात्रा। घंट वाद्य ताले ताले बर्तमान ये शोभायात्रा आगे आगे चली। महिला माने मुंडरे कलश रे पानी धरी मां पाखक जाउछंती एवं केते सुंदर दिसुची दृश्य जितेबाला सारा विश्व देखिब मां पीठर से ऐतिह्य देखिब सारा विश्व देखिब समस्त देखिबे। तो याकू नहीं समस्त मध्य उत्सव मुखरित अछंती। यार भितर एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइछि। जितेबाला ये जो दृश्य देखुछंती कलश शोभायात्रा बाहरी मां अभिमुखे 1100 महिला सामिल होइछंती एवं मुंडरे कलसी जितेबाला विश्व देखिबा आस्था एवं विश्वासर से पीठ
समलेई मंदिर रूपांतरित रूप समलेई प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसंता काली को अपेक्षा एवं ये हूँ ता पूर्वर प्रस्तुति आपड़ देखिपुर ये ता पूर्वर केमती प्रस्तुति सबुठी सृष्टि होची एक प्रकार आध्यात्मिक परिवेश मंदिर नुआ रूप को देखि तृप्त होउछंती भक्त श्रद्धालु केवल जिला कहीं जिला बाहर राज्य बाहर जो भक्त मैंने आसुचंती जो श्रद्धालु मैंने आसुचंती मंत्रमुग्ध हो जाउछंती एभली दृश्य को देखिकी महिला माने देखंतु केमती भक्तिर निदर्शन देखा मिली माँ समलेश्वरी होउछंती इष्ट देवी जेकोसी पश्चिम ओडिशार मांगलिक कार्य हो कि बह हो अन्य कौन शुभ कार्य हो प्रथमे माँ निकट को निमंत्रण पत्र जाए माँ होउछंती इष्ट देवी माँ होउछंती प्रत्यक्ष देवी एवं माँ मंदिर जितेबाला लोकार्पण उत्सव होउछि सेथिबे महिला माने आपण देखंतु सेमानक भितरे जो भक्ति भाव जाग्रत होइछि एवं कलश शोभायात्रा रे महिला माने आसुचंती 1100 महिला आसुचंती ये गोटे दिव्य एवं भव्य अनुभूति कहि परिबा प्रत्येक महिला कि जितेबाला कलश रे जल नहीं आसुचंती एवं माँ मंदिर को आम सहित त्रिविक्रम लाइव जोड़ी होइछंती त्रिविक्रम एक चमत्कार दृश्य जितेबाला विश्व देखिबा आस्था एवं विश्वास पीठ समलेई मंदिर रूपांतरित रूप यार भितर कलश शोभायात्रा मध्ये आसीछि केमती आपण पूरापूरी परिवेश देखुछंती सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते से माँ समलेश्वरी जे मंगलमय माँकर जेहेतु ये रूपांतर कार्य हम ता पूर्व देखिपारे समस्त प्रकार विधि विधान संपन्न करा जाउछि एबे देखंतु सीधा सड़क यज्ञ मंडप रे मंडल कटा जाउछि कौन कौन सब करा जाउछि एठी मुख्य पुरोधा जी अछंती पंडित मंडली भितर आमे सीधा सड़क पचारिबा आज्ञा कौन कौन सब चली जेबे वर्तमान मंडल कटा चलीजे ये जो सर्वत्र भद्र मंडल योगिनी मंडल वास्तु मंडल क्षेत्रपाल मंडल नवग्रह अष्टादश मातृण सब मंडल तैयारी चलीजे आ जो स्तंभ मान को जो पूजा हबार कथा तार सब साजसज्जा चलीजे आ बहुत नीति विधि रे ये यज्ञ हेब वर्तमान चतुर्द्वारे मध्य चंडी यज्ञ हेब काली आ बहुत सुंदर भाव आज्ञा देखो 5टी जगह यज्ञ हम कहछि ये हूँ मुख्य मंडप एवं आज से 1100 महिला पूर्ण कलश धरी आसी पहुंची अयोध्या सरोवर घाट हाँ बहुत नीति विधान रे नीति विधि रे हमर 1200 कलश यात्रा होती माँ माने कलश बोईले महानदी रू माराड़ीपड़ा जोटा निकट कह जाऊे सेनु पूजा है माने गंगा जमुना सरस्वती संगर पूजा होगी तेणु आमर कलश शोभा यात्रा है वाद्य शंख घंट ध्वनि रे कंपित है जो मंदिर को आसी कलश थोइले ए बहुत जयकार कले आनंद हेले समस्ते हरिबोल पकाले हुलहुली देले वर्तमान समस्ते प्रसाद पाइबा जाइछंती गोपाल जी मठ यहाँ पर कौन कौन हम आज ये जो मंडल सब तैयारी हो आज कार्यक्रम एतकी रहिबो ये जो ये सब मंडल तो बहुत टाइम लगे आर कालीठू आमर यज्ञ आरंभ हो जो स्तंभ पूजा पहला प्रथम रे आमर सूर्य पूजा हेब आउे कलश पूजा संकल्प दीप पूजन आउ स्तंभ पूजन 16टा स्तंभ अच्छी 16 स्तंभ पूजा हेब आउ जो मंडल सब कटाई मंडल पूजा हेब अग्नि स्थापना हेब विधि विधान रे आउ यज्ञ माने सप्तशती चंडी यज्ञ आरंभ हेब सब द्वार समान भाव चलो आउ बहुत सुंदर भाव में केतले पूर्णाहुति पड़िबो पूर्णाहुति आमर 27 तारीख रु आरंभ है आ माननीय मुख्यमंत्री भी आसबे आ लोकार्पण करेंगे तार 31 तारीख रे 12टा ରୁ 1टा सुधा ये सब पूर्णाहुति कार्यक्रम रखा जाए देखो जहाँ शुणुले पंडित कहवा कथा हूँ 31 तारीख जेहेतु आज जदिव आगु अंकुरारोपण कराइला आज विभिन्न कार्यक्रम चली आसता काली यज्ञ सामिल हेबे मुख्यमंत्री एवं लोकार्पण उत्सव अनुष्ठित हम लोकार्पित हम ये जो महत्वाकांक्षी समलई योजना एवं किंतु यज्ञ जो रही यज्ञ चलुव यज्ञ 31 तारीख ही पूर्णाहुति हेब तेणुक 5टी स्थान में यज्ञ मंडप कर देखिपे विभिन्न स्थान में जो मंडल कटा जाए पंडित माने मंडल काटुंट आसंता काली प्रथम सूर्य पूजा हेब और यापर ही यज्ञ आरंभ हो गोटी पटे सीधा सड़क आम प्रतिक्रिया नेबा सीधा सड़क ये अच्छा ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू आज्ञा आसंता काले कौन कार्यक्रम रही है तो देखा 1100 रू ऊर्ध्व महिला आसी पूर्ण कुंभ धरी जमी समस्ते नुआ चुनरी पकई गोटे जमी भक्तिमय परिवेश सृष्टि होता आज आउ कौन कौन हम काली कौन आज आज देखु हजार हजार संख्यार माँ मैंने आसिक कलश धारण करते महानदी घाटरे एवं
से समस्ते आसिक मंदिर परिसर को पाखापाखि 3 किलोमीटर रास्ता आम आशा कर नथुलु जे 3 ରୁ 4 हजार महिला माँ माने आसिक एठी सामिल हेबे एवं महानदी घाटरू कलश धारण करी पाखापाखि 3 किलोमीटर रास्ता चली चली खाली पादरे आसिक एठी पहुँची एवं कलश संस्थापित होती वर्तमान अधिवास कार्य चली पंडित माने से कार्य तुलाउछंती एवं एथिरे समस्त भक्त उल्लसित अछंती खुशी अछंती कृतज्ञता जणाउछंती माननीय मुख्यमंत्री को एवं 5T तथा नवीन ओडिशार अध्यक्ष श्री कार्तिक पांड्यन को कहीं ये सुंदर प्रकल्पटे तैयारी हेबो कौनसी व्यक्ति कौनसी भक्त आशा कर नथिले जो प्रकार सुविधा जो प्रकार कार्य हेइची सेटा को समस्त देखिक अभिभूत अछंती एवं आसंता काली यज्ञारंभ हेबो आज तार प्राक प्रस्तुति सरीची काली आसंता काली सकाळ 8:30 समय यज्ञ कार्य आरंभ हेबो एवं यज्ञारंभ हैला परे दिन 12:30 समय माननीय मुख्यमंत्री मंदिर परिसर को आसबे माँ आशीर्वाद ने बाबा भैरवनाथ को दर्शन करेंगे तापर जो फलक तैयारी होती प्रकल्प तार अनावरण करी प्रकल्प को भक्त मान उद्देश्य लोकार्पित करेंगे एवं तापर यज्ञस्थली उपस्थित रहीक माँ आशीर्वाद ने चंडीपाठ समय से उपस्थित रहे एवं अल्प समय पर से पुणी प्रकल्प अंचल बुली देखिए मिशन शक्तिर माँ मान को भेटे जो विभिन्न मठ मंदिर निमंत्रित सारा ओडिशा निमंत्रित पूजक एवं प्रतिनिधि माने अछंती मंदिर प्रतिनिधि माने तांकु साक्षात करेंगे एवं परिशेष रे जो गण्यमान्य व्यक्ति माने संबलपुर एवं आखपाख अंचल समस्त को निमंत्रण करा जायछि मंदिर परिसर रे सेमान को मध्य साक्षात करिवार कार्यक्रम रही देखो सीधासलख शुणुले आसंता काली कौन कार्यक्रम रही जेहेतु जो चली मुख्यतः रीतिनीति संपन्न होता है माँ जो सब पूजार्चना रीतिनीति संपन्न होता है तेणु एत बड़ जेहेतु महत्वाकांक्षी प्रकल्प आज लोकार्पित आसंता काली होगा जाऊँगी ता पूर्वर जमी समस्त प्रकार रीतिनीति संपन्न हम से पूर्वर करा अंकुरारोपण करा आज देखु गोटे महिला मान द्वारा शोभा यात्रा बाहरी से कलश यात्रा संपन्न होती कलश यात्रा पर कलश आसी स्थापन कर यज्ञ मंडप निकट में एवं एसहित गोटे एपटे मंडल कटा चली पंडित मान द्वारा यापर आसंता काली सकाल 8:30 ही यज्ञ कर्म आरंभ हम निश्चित भाव आसंता काली सकाल 8:30 यज्ञ कार्य आरंभ हो भक्त मैंने एक प्रकार दिव्य अनुभूति पाइबे दिव्य अनुभूति साउंटिबे एक प्रकार आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होची एवं जी देखुचे एते सुंदर कार्य को मंदिर नुआ रूप को भक्त तृप्त हो जाउछंती विक्रम परवर्ती समय फेरुछु हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ हर 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 दर पे दिया तू जला दे चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण
पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में। बड़ खबर बिहार राजनीति में बड़ परिवर्तन संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं हटचमट, महागठबंधन छाड़ी पुणी देखा कि एनडीए को फेरबार संभावना। बीजेपी सहयोग में पुणी सरकार गढ़िबार संभावना। मुख्यमंत्री पद बजाय रखिबे नीतीश कुमार, सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री हेबा नहीं चर्चा। बीजेपी सहित मिसी सरकार गढ़िपारती नीतीश कुमार। 28 जनवरी में नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारे जेतेबेले बड़ खबर आसुची एवं यारी भितरे नीतीश कुमार बिहार राजनीति में घड़के घोड़ा छुटुची। जेडीयू आरजेडी मिलित सरकार एबे हलचल सृष्टि होईची, बड़ हलचल सृष्टि होईची बिहार रे। एवं गतकाली आम देखिथिलु अमित शाह घरे बिहार बीजेपी नेता बैठक पर बिहार जेडीयू आरजेडी मिलित सरकार को लेकिन नानादी चर्चा होउची एवं एपरिक खूब शीघ्र सरकार जेडीयू ओहरिबा नहीं नीतीश सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं पारती एवं एथुर लागुची कि सबकिछि ठीक चली नाही। ताहा गणतंत्र दिवस समारोह आज संकेत मिली एवं वर्तमान समय आगक गोटे बड़ परिवर्तन हम एवं एक कथा कहुची कि बीजेपी सहित मिसी सरकार गढ़िपारती नीतीश कुमार, सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री हेबा नहीं चर्चा। पूर्व सुशील मोदी बिहार उपमुख्यमंत्री रही सारी एवं यार किछि दिन पर देखिबा कि एभली स्थिति उपजिथिला जोथिपई कि नीतीश कुमार बीजेपी को टार्गेट करथिले एवं ओहरी जाइथिले एवं जेडीयू आरजेडी मिसी सरकार करथिले। यार भितरे आ गोटे किछि बड़ चेंजेस हेबाकु जाउछि, बड़ परिवर्तन जेहेतु आगकु निर्वाचन अछि एवं जातीय राजनीति बेस उष्म होछि। यार पूर्व बिहार में घड़िके घोड़ा छुटुछि। 28 जनवरी में नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारे ये वर्तमान समय जहाँ सूचना आसुची एवं भारतीय जनता पार्टी सहित मिसी नीतीश कुमार सरकार गढ़िपारती। अर्थात गोटे रोचक मोड़ में वर्तमान समय राजनीति देखा मिली। आज साधारणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सेमती किसी दृश्य सामना को आसी जहाँ चर्चा को अधिक खोराक जगाई। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। हाँ नहीं, वो तो देखिए रूटीन है। बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो,
या फिर परिवारवाद की बात हो, नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। ये में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। आप जा रहे हैं दिल्ली? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है। तो वर्तमान समय जो बड़ हटचमट देखा मिली बिहार में आलोचना करवा मो सहयोगी विक्रम केशरी परिचय फोलाने अच्छा। विक्रम, बिहार राजनीति में घड़िके गोड़ा चुटुची और गोटे बड़ हलचल आरंभ हो जाइए, गोटे बड़ परिवर्तन आगक होबार संभावना कि जिते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकिन हटचमट होती कहु कि 28 जनवरी में नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारे पुणी देखा कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी एकाठी होगा जाऊँगी। देखो जदि एमती हुए ताहले हम नीतीश कुमार गत 10 वर्ष भितर चतुर्थ थर पट परिवर्तन एवं आपण जानते जदि मुझे संख्या गणित विषय कहना चाहिए ताहले बिहार विधानसभा रे मोट आसन संख्या हूँ 243 एवं मैजिक नंबर हूँ 122 अर्थात 122 विधायकों समर्थन जहाँ को मिल से सरकार गठन कर। वर्तमान बीजेपी 78 विधायक अच्छा जेडीयू 73 जन विधायक अच्छा एवं एमानंकु जड़े मात्र जो इंडिपेंडेंट विधायक बा निर्दलीय विधायकों समर्थन जदि मिले ताहले 122 जन बा मैजिक नंबर से अचीव करछंती। तेणु जदि आज कि काली की किछि घंटा भितर जेडीयू जे अछंती मुखिया नीतीश कुमार से पट परिवर्तन कहउछंती एवं पुणी थरे से बीजेपी पाखक फेरुछंती तारे निहाती भाव में जो आपण जहाँ सूचना देले जे खूब शीघ्र नुआ मंत्रिमंडल गठन होगा जाउछि ताहा असंभव नुहे। द्वितीय कथा हूँ जे वर्तमान एक कथा कहीं संभावना सृष्टि होती एक कहीं आलोचना होती तार अनेक कारण अच्छी। आप जानते जे वर्तमान जो मुख्य विरोधी दल भूमिका विरोधी मेंटर जो भूमिका निभाऊँगी जोटा इंडी गठबंधन बा इंडिया बोली जहाँ कहते इंडिया अलायंस, तो से अलायंस जे मुख्य कर्णधार जे बेस जे आरंभ करवा लोक सी हूँ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी हाथ छाड़ी जिते आरजेडी हाथ धरिले आरजेडी लालू प्रसाद यादव पुओ को निजे उपमुख्यमंत्री करैले सेतबेला समय से बीजेपी गोटे विकल्प स्थिर करने से जातीय स्तर में उद्यम आरंभ करते निजे गोटे जातीय स्तर में बड़ भूमिका उद्यम आरंभ करते किंतु से जो मैंने परस्पर विरोधी जमी कांग्रेस सहित आप विरोधी विभिन्न स्थान में ममता बनर्जी और कांग्रेस वाम दल गुड़िक परस्पर विरोध लड़ुंट पश्चिमबंग से कांग्रेस और वाम दल परस्पर विरोध लड़ुंट केरल में एमती अनेक परस्पर विरोधी दल को एकाठी कर सक्षम होते जहाँ को लेकर इंडिया अलायंस गठन होता कहला नीतीश कुमार तार कन्वेनर आवाहक भाव में दायित्व मिल पारे बड़ दायित्व मिल पारे सी हुए तो अलायंस चेहरा हो पारती किंतु परवर्ती समय देखा मिलला जे तांकर कन्वेनर हवा पछरे कांग्रेस से भली आग्रह देखागला नहीं एवं कांग्रेस जो भली भाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को मेंटर आवाहक भाव में पुश कला ताकू कोठी ना कोठी नीतीश कुमार ग्रहण कर पारले नहीं। एवं द्वितीय कथा होची जे भली भाव में जो गत 4-5 निर्वाचन राज्यर जो निर्वाचन हैला से निर्वाचन पूर्व गठबंधन बा सीट शेयरिंग नहीं आलोचना लगी नीतीश कुमार चाहूले किंतु कांग्रेस ए सब को खातिर नक निजे निर्वाचन को ओल्लई पड़ा अर्थात निज निजर प्रस्तुति कला मेंट को साथी नापी चाहलानी यह नीतीश कुमार नाराज हबार द्वितीय कारण हो पारे। तृतीय कारण हूँ जो भाव में राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ यात्रा जो से कर तो सेतबेले निहाती भाव में अलग जो मेंट को साथी नेउ नथिबार अभियोग होची एवं से निजे निजर राजनैतिक भविष्य बा कांग्रेस निजर राजनैतिक स्थिरता बा अग्रगति लगी आगे चलती किंतु अन्य सहयोगी मान साथी नौ ना एवं वर्तमान सुधा कौन सीट शेयरिंग नहीं कौन कथबार्ता आगे पारना अर्थात मेंटरे केवल कांग्रेस निजर
सहयोगी मानकु साथी नवा बदल निजर राजनैतिक स्वार्थ साधन लगी व्यवहार करते नीतीशकर हृदबोध है और जहाँ फल सी गोटे झटका देवाई चाहते जार यही जो सामान मनोभाव कथा आप देखी जे किभଳି भाବରେ ममता गत 2 दिन तले घोषणा कले जे आमे पश्चिमबंग में एकुटिया लड़बू से भाव में आप अरविंद केजरीवाल पंजाब में एकुटिया लड़बे बोली स्पष्ट घोषणा करते अर्थात जो मेंटर जो उद्देश्य थिला सेही उद्देश्य को कोठी ना कोठी 5 राज्य निर्वाचन बेले कहगला जे ए मेंट राज्य निर्वाचन नुहे एटा जातीय निर्वाचन कराई किंतु जातीय निर्वाचन पूर्व जो कांग्रेस समस्त को एड़ी जे निजे एकला चलवा आरंभ करती कौन ना कौन उपाय तार जो सहयोगी मैंने अच्छा जमी नीतीश कुमार हेले ममता हेले कि अरविंद केजरीवाल एमानकु अशांत करके एमानकु दुखी करके नीतीश कुमार तार फलाफल तांकर नीतीश कुमार गतिविधि स्पष्ट परिलक्षित होउछि। निश्चित भाव में जितेबाला देखिए कि वर्तमान समय आपको नहीं अनेक चर्चा हो कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कर नीतीश कुमार और चतुर्थ थर जमी कले पट परिवर्तन पूर्व अनेक थर देखा मिली आपको नहीं केवल बिहार राजनीति नुहे विक्रम जातीय राजनीति आपको नहीं सरगरम होती। धन्यवाद विक्रम। जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में घर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया बोलो सियावर रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ हर 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 दर पे दिया तू जला दे चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो राम सिया राम इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई आएगा ये तो विश्वास था अब जो तू यहाँ लौटा है स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते
जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया आपण देखुचंती खबर फटाफट। भारत आज पाळुछि तार 75तम गणतंत्र दिवस। एही पवित्र उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जातीय पताका उत्तोलन करिसेंती। दिल्लीर कर्तव्य पथ आयोजित भव्य कार्यक्रम में पताका उत्तोलन करिसेंती राष्ट्रपति। इस समय राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित वर्षर मुख्य अतिथि फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन उपस्थित थे। सहित केन्द्र मंत्रिमंडल सदस्य 3 सेनार मुख्य कमांडर माने कर्तव्य पथ आयोजित गणतंत्र दिवस उपस्थित रही। T-90 भीष्म टैंक, नाग मिसाइल, पिनाक मिसाइल, वेपन लोकेटिंग राडार सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम, एडवांस रेडियो फ्रिक्वेंस मल्टीफंक्शन MF राडार प्रदर्शित होछि। सेपरी 3 बाहिनीर महिला अफिसरଙ୍କ वीरत्व प्रदर्शन होछि। प्रथम करी सेना बाहिनीर मेडिकल महिला कंटिजेंट मध्य शामिल होछन्ति। राज्य पड़ी 75तम साधारणतंत्र दिवस उत्सव। राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस पर उत्सव मुखर हो पड़ा भुवनेश्वर। सकाळ प्राय 8टारे राज्यपाल रघुवर दास गांधी मार्ग में पहुंची पताका उत्तोलन करिसेंती। सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। पर अभिवादन ग्रहण करथिले राज्यपाल रघुवर दास। गांधी मार्ग अनुष्ठित होइतिला परेड सहित प्रदर्शित होइतिला प्रज्ञापन मेढ़। चलित वर्ष परेड्र नेतृत्व नहीं युव आईपीएस अफिसर AB शिल्पा। परेड रे 46टी कंटिजेंट, गोटे डेयरडेविल्स, गोटे स्केटिंग, 4टी सांस्कृतिक दल, 12टी प्रज्ञापन मेढ़ अंशग्रहण करथिले। पड़ोसी राज्य मध्य उत्तम समन्वय जोग देवाई झारखंड पुलिस परेड में जोग देते। परेड में ITBO, CRPF, BSF, फायर, ओड्राफ, ओडिशा होमगार्ड समेत विभिन्न स्कूल कॉलेजर छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा। गांधी मार्ग में मुतयन होते 30 प्लाटून फोर्स। डीसीपी नेतृत्व में 6 अतिरिक्त डीसीपी, 14 एसीपी, 28 IIC सुरक्षा दायित्व थे। बीजेपी राज्य कार्यालय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल जातीय पताका उत्तोलन करथिले। ए अवसर में मनमोहन देश गठन में बलिदान देथिबा स्वाधीनता संग्रामींकर स्मृतिचारण करथिले। सेहिपरि वर्तमान समय देश केबे आगको बढ़िबो से नि निजर अभिभाषण में मत रखिथिले। कांग्रेस भवन में पालित होछि 75तम साधारणतंत्र दिवस। पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक जातीय पताका उत्तोलन करिसेंती। ए अवसर में उभय राज्य और केन्द्र सरकार बर्षिंट पीसीसी सभापति। दीर्घ वर्ष धरी शासन नेतिले भी आज भी ओडिशा पछरे पड़िछि बोली शरद कहते। आगामी दिन में कांग्रेस दल को थरटे सुजोग देवाक लोकों को अनुरोध करछन्ती। कटक बाराबाटी स्टाडियम रे 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में राजस्व गणेश शिक्षा मंत्री सुधा मारांडी जोगदेई जातीय पताका उत्तोलन करने सहित सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करिसेंती। परेड रे कमिश्नर पुलिस, 6th बाटालियन, सीनियर जूनियर एनसीसी, स्काउट गाइड, स्कूल कॉलेज सिविलियन टीम को मिसाई मोट 50टी ट्रुप अंशग्रहण होइतिले। पुरी तालाबणिया इंडोर स्टाडियम रे जिला स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक मुख्य अतिथि भाव में जोगदेई जातीय पताका उत्तोलन करने सह परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। पौर संस्था पक्षरु स्वच्छ सवारी, पोस्टल विभाग पक्षरु प्रज्ञापन मेढ़ प्रदर्शित करथिले। यह अवसर में मंत्री पुरी को विश्वस्तरीय करने नहीं राज्य सरकार पक्षरु कर विभिन्न विकासमूलक काम संपर्क में कहते। जिला प्रशासन पक्षरु विभिन्न क्षेत्र में सफलता अर्जन कर प्रतिभा को संबर्धित कर।
केन्दुझर 75तम जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक मुख्य अतिथि भाव में जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करिसेंति परे परेड रे अभिवादन ग्रहण करिसेंति। बलांगीर मनोहरपुर रिजर्व पुलिस पड़िया 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में कृषि मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई जोगदे पताका उत्तोलन करने सहित अभिवादन ग्रहण करिसेंति। पर विभिन्न स्कूल कॉलेज 42टी टीम परेड अंशग्रहण करते स्कूल छात्र छात्री रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण होता। कृति प्रतियोगी को पुरस्कृत करा जायछि। बरगढ़ सरड़ा पंचायत कॉलेज पड़िया 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि भाव में बरगढ़ जिलापाल मोनिषा बानार्जी जोगदे पताका उत्तोलन करने सहित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। देशर एकता और संहति को किभली भाव में सुदृढ़ कर समस्ते एकत्रित हो संकल्प नेबाकू आह्वान करिसेंति जिलापाल। यह अवसर में उल्लेखनीय कार्य करिथिबा डाक्तर, नर्स, आशाकर्मी, पुलिस, अग्निशम विभाग कर्मचारी, अंगनवाड़ी आदि योद्धा को मानपत्र दी सम्मानित करा जायछि। यह अवसर में जिलापाल बरगढ़ सरड़ा महात्मा गांधी और स्वभाव कवि गंगाधर मेहर प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करिसेंति। परेड रे 31टी टीम अंशग्रहण करथिबा बेले 6टी सांस्कृतिक दल सेमानकर नृत्य गीत परिवेषण करथिले। नवपुर खलिकोट विश्वविद्यालय खेल पड़िया उपखंड स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में दक्षिणांचल आरडीसी टी आओ जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करने सहित सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। मोट 37टी ट्रुप सामिल होई परेड प्रदर्शन करथिले। या 6टी ट्रुप द्वारा सुंदर पीटी डिस्प्ले करथिला। शेष में ब्रह्मपुर स्केटिंग एकाडेमी पक्षर सुंदर देशात्मबोधक संगीतर ताले ताले कला कौशल देखाइथिले। विभिन्न प्रतियोगिता कृति प्रतियोगी को पुरस्कृत करा जायछि। यह अवसर में ब्रह्मपुर एसपी, बीएमसी कमिश्नर, ब्रह्मपुर उपजिलापाल, ब्रह्मपुर सांसद, विधायक समस्त मेयर उपस्थित थिले। भद्रक स्वयंशासित महाविद्यालय पड़िया जिला स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। भद्रक जिलापाल सिद्धेश्वर बलबोदर जातीय पताका उत्तोलन कर पुलिस परेड अभिवादन ग्रहण करिसेंति। जिलापाल निजर अभिभाषण में ओडिशा रे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलसेचन, शिल्प और मिशन शक्तिर सफलता ओडिशा प्रगति को रुद्धिमंत करिछि बोली कहिसेंति। यह अवसर में स्कूल कॉलेज छात्र छात्री मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। जिलार विभिन्न स्कूल मध्य होइतिबा प्रबंध क्विज प्रतियोगिता रे कृतित्व अर्जन करिथिबा छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायछि। जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस रे अन्यमानक मध्य एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। ढेंकानाल मुख्य स्टाडियम पड़िया 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। जिलापाल मुख्य अतिथि भाव में जोगदे पताका उत्तोलन करिसेंति। परेड अभिवादन ग्रहण करथिले। मोट 38टी टीम परेड अंशग्रहण करथिले। स्कूल छात्र छात्री द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। शेष में विभिन्न केन्द्र में कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायछि। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। स्थानीय श्रीकृष्णचंद्र गजपति महाविद्यालय खेल पड़िया आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में गजपति जिलापाल श्रुतिरंजन प्रधान जातीय पताका उत्तोलन करने सहित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। शेष में विभिन्न शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। झारसुगुड़ा जिला स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित। मनमोहन एमई स्कूल परेड ग्राउंड रे जातीय पताका उत्तोलन कर अभिवादन ग्रहण करथिले ग्राम्य उन्नयन मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई। एथिरे 25टी स्कूल समेत 29टी ग्रुप परेड रे भाग नेथिले। जातीय पताका उत्तोलन समारोह रे जिलापाल एसपी उपस्थित थिले। 75तम साधारणतंत्र दिवस कंधमाल जिला पुलिस रिजर्व पड़िया अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में ओडिशा अर्थमंत्री विक्रम केशरी आरुख जोगदे पताका उत्तोलन करने सह परेड रे अभिभाषण रखिथिले। 56 विद्यालय आसिथिबा छात्र छात्री द्वारा परेड प्रदर्शन करथिले। शेष में विभिन्न कृति प्रतियोगिता कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री को पुरस्कृत करा जायछि।
इस्टकोस्ट रेलवे खोर्धा रोड डिविजन तरफ स्थानीय रेलवे कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड ठारे 75तम गणतंत्र दिवस महाआडंबर में पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में खोर्धा रोड डीआरएम हरविंदर सिंह बाबा जोगदे पताका उत्तोलन कर खोर्धा रोड रेलवे मिक्स स्कूल छात्र छात्री द्वारा देशभक्ति गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण कर नयागढ़ जिला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पड़िया 75तम साधारणतंत्र दिवस महासमारोह पालित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव में जिलापाल रवीन्द्रनाथ साहू जोगदे जातीय पताका उत्तोलन कर सुरक्षा बाहिनी कर्मचारी सहित स्कूल कॉलेज छात्र छात्री द्वारा परेड प्रदर्शित होछि। राउरकेला उदित नगर मिनी स्टाडियम रे जिला स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस पालित होछि। मुख्य अतिथि भाव में उत्तरांचल राजस्व कमिशनर जोगदेवा सहित पताका उत्तोलन करथिले। जिताकर्षक परेड अभिवादन ग्रहण करथिले आरडीसी